अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आर यू विद मी? जी खतीजा, थैंक यू बेटा। कैसे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अदीला, वालेकुम सलाम। जी बेटा, टुडे आवर टॉपिक इज फिजिकल असेसमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ क्लियर है? एक्चुअली मास्क थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ, मुझे वॉइस क्लियर आए आप लोगों को। बेटा अभी मुझे आप क्लियर करोगे, देन आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट। वॉइस क्लियर है? और स्लाइड विजिबल है आपको? एनी इशू रिगार्डिंग स्लाइड्स? Everything is clear. Thank you, beta. Okay, now we will continue. Okay, now we will discuss today respiratory system. This is a brief review of anatomy physiology of the respiratory system. So we know nasal cavity, nose, hair, epiglottis, larynx, trachea, right lung, bronchi, heart. These are the briefly components of the respiratory systems. So our learning objective is after completion of this lecture, the students will be able to revise knowledge of anatomy and physiology, to obtain health history about respiratory systems, demonstrate physical examination, and differentiate between normal and abnormal findings. Okay, today our learning objectives we will discuss one by one. So we will review the brief introduction of anatomy physiology. As you know, anatomy physiology of the respiratory system, upper respiratory, we are divided into parts, upper respiratory and lower respiratory. Anatomy physiology, nasal cavity, trachea, right and left lungs, bronchioles, bronchi, pharynx, epiglottis, larynx, diaphragm, pleura. These are the anatomy. And we will review the physiology. Physiology means कि हम respiratory functions को हम किस तरह जो है वो function कैसे करता है, ठीक है? एनाटॉमिकली तो हमें पता चल गया कि ये स्ट्रक्चर्स है, ठीक है? अब फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फंक्शन क्या है? Where are you rest of students? बेटा only 2 students are on air. Adila, Khatija, बेटा where are you rest of students? Please contact her to continue online lectures. Okay, physiology, deoxygenated blood from the pulmonary arteries and alveoli, air and capillaries. As you know, our gas exchange at the base of the lungs. ऑलिवलाई में हमारी बेस में क्या होती है? लंग्स की जो है वो गैस की जो है वो एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज होती है ऑलिवलाई में, ऑलिवलाई प्रोसेस में, तो हम उसको फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं. ओके बेटा, दे आर कमिंग इंशाल्लाह. Upper respiratory. As you know, I discussed already that we are divided respiratory system in two parts, upper respiratory and lower respiratory. Upper respiratory tract consists of nose, pharynx, adenoids, tonsils, epiglottis, larynx, and trachea. And the function of upper airway, filter airborne particle, modified and warm inspired gases. कि हमारे अपर रेस्पिरेटरी का फंक्शन क्या है? वो क्या करता है? एक तो एयर को क्या करता है? फिल्टर करता है, एयरबोर्न से प्रिवेंट करता है पार्टिकल से, और हम मॉडिफाई एयर जो हम इनहेल करते हैं हम मॉडिफाई करता है और वार्म रखता है इंस्पायर्ड हमारी गैसेस को. इज इट क्लियर? ओके. This is a soft palate and adenoids of the
Anatomical functions, soft palate. This is a clear view of a soft palate, tonsils, tongue, adenoids, and uvula. This is a normal pictures of the inner sides of the mouth respiratory systems. क्लियर है कि ये सॉफ्ट पैलेट है आपको जो नजर आ रहा है, एरो निशान है उसका, टॉन्सिल्स हैं बोथ साइड्स राइट और लेफ्ट है, आपको जो सामने नजर आ रही है टंग है, एडिनॉइड्स जो है उसके साथ ही हैं, ठीक है, यूबुला क्या आपके जो है वो थ्रोट के सेंटर में है. इज इट क्लियर? ओके. द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ ब्रोंकाई, bronchioles, alveolar ducts, and alveoli, with the expectations of the right and left main stem bronchi. All over, our lower airway structures are contained with the lungs. Within the lungs, lower airway serve as a gas exchange. Already I discussed at the before at the beginning कि हमारा हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करते हैं, टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर में और लोअर में. अब अपर का क्या है, उसमें हमारी अपर एयर, नोज, एडिनॉइड्स, एपिग्लॉटस, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडिंग. और उसका फंक्शन क्या था कि वो एयर को वार्म करता है, हमें फिल्टर करता है उसको, और जो वार्म करता है इंस्पायर्ड गैसेस को, ठीक है, और जितने भी एयरबोर्न पार्टिकल है उनसे प्रिवेंट करता है. अब लोअर रेस्पिरेटरी का फंक्शन क्या है कि लोअर एयर जो है वो सर्व करता है एज ए गैस एक्सचेंज. वहाँ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो आपस में एक्सचेंज का फंक्शन करती हैं एट द बेस ऑफ द लंग्स इन ऑल्वलाई. ओके, वालेकुम सलाम सुमैया शाहिद गजाला, थैंक यू बेटा, यू आर ज्वाइनिंग नाउ. इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बेटा आपको? ओके जी. Low respiratory is a continuum. The right lung is divided into three lobes, upper, middle, and lower. The left lung into two lobes, upper and lower. The structure of the chest wall, ribs, pleura, muscles of respirations are also essential. ठीक है, इसके अंदर रिब्स भी है, प्लूरा भी है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पेक्टोरियस मसल जिन्हें हम कहते हैं वो भी एसेंशियल है. इज इट क्लियर? एज यू नो कि आप लोगों के एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑलरेडी जो है वो बेस में है आपके, ठीक है, आप लोग ऑलरेडी जो है आपने जो है बेसिक एजुकेशन में पढ़ चुके हैं, अब एडवांस में है, तो इसलिए कोई भी सिस्टम रिव्यू करने से पहले जो है आपको रिव्यू करना पड़ता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ताकि आप हेल्थ हिस्ट्री लेते वक्त, एग्जामिनेशन करते वक्त आपकी अंडरस्टैंडिंग वेल डेवलप हो जाए. ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, पिज्जा, यू वेलकम, यू आर ऑल्सो आई थिंक ज्वाइन एज ए फर्स्ट टाइम. Okay. Here is a showing lungs, right and left lungs. As we discussed already, right lung have a 3 lobe and left lung have a 2 lobes. Because of जी स्टूडेंट्स, क्यों राइट लंग्स जो है वो हमारे 3 लोब्स हैं और लेफ्ट साइड पे हमारे 2 लोब्स हैं? जी, आई नीड योर क्वेश्चन, आई एम वेटिंग. बेटा, राइट लंग के 3 लोब्स और लेफ्ट लंग के 2 लोब्स क्यों हैं? जी जी मरियम, वेलकम. हाँ जी, प्लीज टाइप हियर कमेंट्स. माय क्वेश्चन इज, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट लंग एंड लेफ्ट लंग? ओके, बिकॉज ऑफ हियर देयर आर 2 lobes in left lungs. Why? My question is बेटा ये था कि राइट साइड के 3 lobes क्यों हैं और लेफ्ट साइड के लंग्स के 2 lobe क्यों हैं? बिकॉज यस, बिकॉज ऑफ हार्ट इज देयर. सुमैया, वेल डन, बिल्कुल यही है, इजी क्वेश्चन था, क्योंकि वहाँ स्पेस कम है जिसकी वजह से जो है वो आपका 2 लोब है लेफ्ट साइड पे, हार्ट ऑफ द लेफ्ट साइड. ओके, थैंक यू. जी बेटा, दिस इज ऑल्सो ब्रीफ रिव्यू ऑफ द एनाटॉमी फिजियोलॉजी. रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि हमें सिस्टम को रिव्यू करने से पहले हमें बेसिक जो है वो टर्मिनोलॉजी, बेसिक ग्लॉसरी आनी चाहिए कि ब्रोंकाई क्या है, डायफ्राम क्या है, एपिग्लोटिस क्या है, इसोफिगस का क्या फंक्शन है, ठीक है, और हार्ट है, क्योंकि हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर ही हार्ट है. ठीक है, तो ब्रोंकाई क्या है? द 2 मेन एयर पैसेज है इनटू द लंग्स, ऐसे ही है. ठीक है, थैंक यू आरफा गुजाला.
डायाफ्राम द मेन मसल्स यूज फॉर ब्रीदिंग। जैसे अभी हमने पढ़ा कि दोनों लंग्स के साथ रिब्स भी है, प्लूरा भी है और रेस्पिरेटरी मसल्स भी है और डायाफ्राम भी है। तो डायाफ्राम क्या है? द मेन मसल्स हैं यूज फॉर अ ब्रीदिंग, सेपरेट द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द अब्डोमिनल कैविटी। क्योंकि डायाफ्राम जो है वो सेपरेट करता है हमारी चेस्ट कैविटी को, जस्ट लाइक एक मसल्स या बिग मसल्स है, ठीक है, जो कि सेपरेट डूम शेप का होता है, जो कि सेपरेट करता है हमारा चेस्ट कैविटी को और अब्डोमिनल कैविटी को। What is a epiglottis? A flap of cartilage prevent food from entering the trachea और इसको हम विंड पैप भी कहते हैं, ठीक है, ट्रेकिया को विंड पैप भी कहते हैं। ये एपिग्लोटिस क्या है? एक फ्लैप है कार्टिलेज का जो कि प्रिवेंट करता है हमारी फूड जो है वो कहीं एंटर ना हो जाए ट्रेकिया में, ठीक है। ईसोफिगस एज यू नो कि ये क्या है? हमारी फूड की जो है वो एक वो है पाइप है, ठीक है, द ट्यूब है थ्रू विच फूड पासिस फ्रॉम द माउथ डाउन इनटू द स्टमक। हार्ट द मसल्स ऑर्गन दैट पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। सिर्फ हार्ट का फंक्शन जो है वो ब्लड को पंप करना है, ना कि उसको कोई और इसका फंक्शन है। जैसे हम कहते हैं हमारा दिल नहीं चाह रहा ये करने को, हमारा दिल नहीं कर रहा कुछ खाने को, दिल नहीं कर रहा पढ़ने को, तो एक्चुअली यहाँ अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ये ज़रूरी है कि हार्ट जो है ये एक मस्कुलर आर्गन है जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्लड पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपने ये नहीं करना कि मेरा दिल नहीं चाह रहा खाना खाने को, दिल नहीं चाह रहा ड्यूटी करने को, दिल नहीं चाह रहा पढ़ने को। तो हार्ट के फंक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले कि ये जस्ट लाइक एक जो है वो मस्कुलर आर्गन है, ठीक है, जो कि ब्लड को वो पंप करता है पूरी हमारी बॉडी को सप्लाई करने के लिए। ओके जी सुमैया, सिर्फ इसका मतलब है कि सुमैया शाहिद ने अंडरस्टैंड किया है हार्ट को, अदरवाइज और किसी ने नहीं किया। जी, intercostal muscles, thin sheet of muscles between each rib that expand when air is inhaled and contract when air is exhaled। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम इंटरकोस्टल स्पेसिस की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये क्या है? ये एक थिन शीट होती है इंटरकोस्टल मसल्स की। किसके दरमियान में? क्योंकि ईच रिब के दरमियान में एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि जब हम एयर जो है वो इनहेल करते हैं तो ये एक्सपेंड होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है जब एयर को हम एक्सहेल करते हैं। लैरिंग्स क्या है? इसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं तो हमारी वॉइस जो है नेक्स्ट पर्सन तक जो जाती है तो उसको हम लेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। लंग्स द टू ऑर्गन्स दैट एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल एयर एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सेल एयर, ठीक है। लंग का फंक्शन क्या है? ये इनहेल और एक्सेल में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वो एक्सेल करता है, ऑक्सीजन जो है वो हम इनहेल करते हैं। जी, मसल्स अटैच टू द डायफ्राम। जी मुसर्रत, मोबीन, बुले लाला, ओके सिद्रा, thank you beta for joining me. Muscles attached to the diaphragm. These muscles help move the diaphragm up and down फ्रॉम फॉर ब्रीदिंग, ठीक है। ये हमने डायफ्राम को ऑलरेडी एक तो देखा कि ये मेन मसल्स है जो कि हमारी अब्डोमिनल और चेस्ट कैविटी को सेपरेट करता है, और इन मसल्स अटैच टू द जो डायफ्राम है वो क्या करते हैं? हमारे मसल्स जो है वो हेल्प करते हैं डायफ्राम को मूव होने में अप एंड डाउन जब हम ब्रेथ करते हैं, ठीक है। जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे, जिन्होंने पोस्ट पीसी किया हुआ है ऑलरेडी उनको पता होगा, हम जब डायफ्रामेटिक एक्सकर्शन की बात करते हैं इनहेल और एक्सेल में हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, जिसमें हम चेस्ट एक्सपेंशन करते हैं। पेशेंट से कहते हैं आप टेक अ डीप ब्रेथ और होल्ड करें, तो हम चेस्ट की एक्सपेंशन को मेजर करते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर हम मेजर करते हैं ताकि उसमें देखें कि हमारे जब इनहेल हुआ है लंग्स जो है वो कितने एक्सपेंड हुए हैं, ठीक है, वो अपनी नॉर्मल स्पेस से थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। इसी तरह इसीलिए उन्होंने कहा है कि वो मसल्स जो है जब डायफ्राम अप एंड डाउन होता है ब्रीदिंग के दौरान तो वो मसल्स क्या करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करती हैं। जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग नौरीन, हीरा, थैंक यू बेटा। ओके, नेजल कैविटी, लेक्चर समझ आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग हो रही है? ओके, you know today's my lecture is only 1 hour. ओके, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में क्या है कि उसका क्या फंक्शन है? इंटीरियर एरिया ऑफ द नोज लाइन विद द स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन एंड कंटेन टीनी सरफेस हेयर कॉल्ड अ सील। आपने देखा होगा नेजल कैविटी के अंदर क्या है?
मतलब ये इंटीरियर ऑफ द नोज है जिसको हम नेजल कैविटी कहते हैं। कैविटी क्या है, हमेशा इंटरनल साइड्स की होती है। इसके अंदर लाइन विद स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करती है हमें फ्रिक्शन से। और इसके अंदर छोटे छोटे टाइनी क्या है, वो हेयर्स है, जिस तरह जिसको हम सिलिया कहते हैं। आपने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन सिलिया का क्या फंक्शन होता है, टेनी हेयर्स का। ये जो वो है इंस्पायर्ड एयर को वार्म करते हैं, जो एयरबोर्न कोई भी पार्टिकल है उनको फिल्टर करते हैं, ठीक है, और जो फिल्टर करने के बाद ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स तक पहुंचाते हैं। ओके, थैंक यू बेटा। ओके सुमैया जी। नोज हेयर लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द नोज, दीज हेयर ट्रैप लार्ज पार्टिकल दैट आर इनहेल्ड, ठीक है। तो ऑलमोस्ट क्या करते हैं, नोज हेयर जो है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया से, क्योंकि वो अंदर नहीं जाने देते। उन हेयर्स को जो है अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्पस रखा है। ये देखो, हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है वो हमें पढ़ने से आ रही है, मगर अल्लाह ताला ने ये चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी हैं कि जो बॉडी बनाई है वो किसी मतलब प्लान के मुताबिक पे उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है और उनको क्रिएट किया है। तो ये छोटे छोटे एयर है, ये ऐसे जो है वो हमारे, इनका कोई पर्पस नहीं है, इनका ये पर्पसफुल है। हम कहते हैं इनका कोई पर्पस नहीं है, हम रिमूव कर देते हैं। तो ये जो है अल्लाह ताला ने इसमें एक बड़ी हमारी ब्लेसिंग रखी हुई है कि जब हम कोई भी पार्टिकल है कुछ भी इनहेल करते हैं तो उनको वो फिल्टर करके जो है वो हम एयर को इनहेल करते हैं। जी, पैरानेजल साइंसेस, एयर स्पेसेस विद इन द स्कल, ठीक है। पैरानेजल, जिस तरह हमने हीट असेसमेंट में नेक में पढ़ा था, फेस हीट असेसमेंट फेस भी उसमें आ जाता है, ठीक है। तो उसमें हमारे कौन कहाँ होता है, फ्रंटल साइंसेस भी होते हैं, हमारे मैक्सिलरी हैं और एथमाइड है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट होते हैं, जैसे हमारे फ्रंटल साइंसेस अगर ब्लॉक हो जाते हैं, इसमें पास है, तो ये भी अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है। अगर आपको फ्लू है या कोई भी जो है सीवियर किस्म का नज़ला जुकाम हुआ है, ठीक है, तो उसमें भी जो है आपको ये प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, जिसमें पास आ जाती है, ये स्पेस नहीं होती, आप बात नहीं सही कर सकते, ब्रीथ नहीं कर सकते, तो ये भी एक इशू है, ठीक है। ये जस्ट लाइक नेजल साइंसेस जितने भी हैं ये एयर स्पेसिस है, ठीक है। ये पैरानेजल क्या है, ये स्पेसिस है विद इन द स्कल, ठीक है। तो ये स्कल के ऊपर ही है हमारे, और ऑलमोस्ट जो है हमारे फ्रंटल है, मैक्सिलरी है, एथमाइड है, सेफनाइड है, ये सारे हमारे साइंसेस हैं। ये जस्ट लाइक एयर स्पेसिस है। जब एयर स्पेसिस के अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है या पस्सी कोई हमारा डिस्चार्ज उसमें अक्यूमुलेट हो जाता है, जिसे हम साइनसाइटिस कहते हैं, तो उन कंडीशंस में भी जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं स्टीम इनहेलेशन लेते हैं, विक्स लगाते हैं, तो ये सब चीज़ें हम इसकी ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। फेरिंग्स क्या है, ये एक थ्रोट है हमारा, ठीक है। Pleural membrane covering the lungs and lining the chest cavity. This membrane has a two thin layers. ठीक है। प्लूरल मेम्ब्रेन्स का क्या फंक्शन है कि इनके प्लूरा जो है, प्लूरा क्या है, ये इसने कवर किया है लंग्स को और उसकी लाइनिंग जो हमारी चेस्ट कैविटी की है। दिस मेम्ब्रेन हैज अ टू थिन लेयर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल लेयर्स होती हैं, और ये प्रिवेंट करती हैं हमें जो है वो वॉल्स को प्रोटेक्ट करती हैं हमारी। इसके अंदर फ्लूइड्स भी होता है, फ्रिक्शन से जो है वो प्रिवेंट करती हैं लंग्स की लाइनिंग को। जी, जिस तरह हमारी स्किन के ऊपर लाइनिंग्स हैं, ठीक है, एपिडर्मस, डर्मस है और सब कुटेनियस टिश्यूज आ जाते हैं। इसी तरह प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं जो कि उसने लंग को कवर किया है किसी भी फ्रिक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, और इसको हम लाइनिंग कहते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ओके जी। पल्मोनरी वेसल्स, इनमें कुछ भी अगर आपको कोई एमसीक्यू आ जाता है, इसलिए मैंने ये ग्लॉसरी अच्छी खासी बीच में ऐड कर दी ताकि रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा सा वास्ट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है आपके लिए, तो इसको आप अच्छे से मेमोराइज कर लें। जी, अच्छा, आलिया, शमाइला, जेनिफर, थैंक यू बेटा फॉर ज्वाइनिंग ऑनलाइन लेक्चर्स। Pulmonary vessels. Pulmonary vessels, pulmonary arteries carry deoxygenated blood from the heart and lungs. सबको पता है कि हमारी बॉडी सिस्टम में क्या है, हमारा बॉडी सिस्टम में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का थोड़ा डिफरेंट है, और हार्ट में वैसा ही, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, कैरी करती हैं हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट और लंग्स तक ले जाती हैं। प्यूरिफाई करने के बाद क्या करती हैं, पल्मोनरी वेन जो होती हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, ठीक है। ये सब बच्चों को पता है, आप लोगों को भी पता है कि हमारी यहाँ पल्मोनरी वेन है, वहाँ पल्मोनरी वेन्स में क्या होता है, ठीक है, वहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और आर्टरीज में क्या है, हमारा ऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी वेन लंग्स से बात की हुई है। अगर सिर्फ सिंपल अगर हम वेन की बात करते हैं, बिग वेसल्स की, तो उसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो आर्टरीज हैं उसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी में, ठीक है। और हार्ट की अगर हम बात करते हैं, पल्मोनरी वेसल्स की बात करते हैं,
तो वहाँ पल्मोनरी मीन्स लंग्स से रिलेटेड बात करती है, चेस्ट से, तो वहाँ पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, फ्रॉम द हार्ट एंड लंग्स, और पल्मोनरी वेन्स जो है वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। इज इट क्लियर जी। रेस्पिरेटरी सेंटर्स, एरिया ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल ब्रीदिंग। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा सेंटर कौन सा है जो हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है? आई थिंक बेसिक पोस्ट बेसिक जिन्होंने किया होगा ऑलमोस्ट आपकी क्लास में पोस्ट बेसिक उनको पता है। हमारा पोन्स ऑब्लेटा जो है, क्योंकि एनाटॉमी हमने ब्रीफली रिव्यू किया है, हमने बहुत एनाटॉमी टोटल नहीं पढ़ी, ठीक है, उसमें हमने रेस्पिरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से ही एनाटॉमी को रिव्यू किया जो सिस्टम हम कर रहे हैं। तो अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है पोन्स ऑब्लिगेटा जो है वो हमारा रेस्पिरेटरी एक सेंटर है जो कि कंट्रोल करता है हमारी रेस्पिरेशंस को, ठीक है। एरिया ऑफ द ब्रेन, इसीलिए कहा गया है कि एरिया ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल ब्रीदिंग, ठीक है, तो वो कौन सा है? पोन्स ऑब्लिगेटा एरिया है ब्रेन्स में, ठीक है। रिब्स, रिब्स क्या है? बोन्स अटैच टू द स्पाइन, मेडुला ऑब्लिगेटा एंड पोन्स। यस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, थैंक यू सुमैया शाहिद जी। रिब्स, bone attached to the spine and central portions of the breastbone, ठीक है, we support the chest wall and protect the heart, lungs and other organs in the chest, ठीक है। रिब्स आपको भी पता है क्या है, ये बोन है जो कि अटैच हुई हुई है हमारी स्पाइनल के साथ बैक से, एंड सेंट्रल पोर्शन जो है वो हमारी ब्रेस्ट बोन के साथ, ठीक है, ब्रेस्ट बोन के स्टर्नम आ जाते हैं जो कि सपोर्ट करती है हमारी चेस्ट वॉल को और प्रोटेक्ट करती है हमारे हार्ट को और लंग्स को और अदर ऑर्गन्स को इन द चेस्ट। क्लियर है, ठीक है। रिब्स का ये फंक्शन आपको पता है कि हमारी 10 जो है वो अटैच है हमारी एक्सटर्नल ब्रेस्ट बोन के साथ, पीछे स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ठीक है, और 2 जो है वो हमारी फ्लोटिंग रिब्स। क्लियर है, ओके। ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या है हमारा? आपको भी पता है, इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, ट्यूब थ्रू विच एयर पास फ्रॉम द नोज टू द लंग्स, आल्सो नोन एज इन द विंड पाइप, ठीक है, इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं जी। क्लियर है, okay. Now we will come to point on history. This is a previous background of the respiratory system. कि respiratory system हम briefly discuss कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमने रिव्यू किया है anatomy physiology briefly, जो कि हम डिवीजन कर लेते हैं 2 पार्ट्स में, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपर रेस्पिरेटरी एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हमने उसके फंक्शन देख लिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में फंक्शन क्या है, ठीक है, और ब्रीफली हमने उसकी ग्रॉसरी को देख लिया कि हम एक जो फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमी फिजियोलॉजिकल हम जिन जिन चीज़ों को रेस्पिरेटरी सिस्टम में असेस करते हैं एक्चुअली उनका फंक्शन क्या है, ठीक है। यहाँ तक लेक्चर्स क्लियर है बेटा? ओके, नो वी विल कम टू पॉइंट, क्योंकि आपने कभी भी भूलना नहीं है कि कभी भी पेशेंट्स के हम फिजिकल एग्जामिनेशन लेने से पहले हमें हिस्ट्री ज़रूरी लेनी है, क्योंकि आप फिजिकल एग्जामिनेशन को प्रॉपरली क्या करते हैं, आप परफॉर्म नहीं कर सकते अनटिल के आपके पास बेस लाइन में हिस्ट्री नहीं है पेशेंट्स की जी। आर यू स्टूडेंट विद मी? ओके, थैंक यू, क्लियर है सब चीज़ें? ओके जी। हिस्ट्री को कभी भी आपने भूलना नहीं है। जब हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट क्या करते हैं, हमने गॉर्डन फंक्शन हेल्थ पैटर्न को कभी भी फॉरगेट नहीं करना, क्योंकि हिस्ट्री हम एडवांस हेल्थ असेसमेंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम बेसिक स्टूडेंट्स नहीं हैं। तो इसलिए आप लोगों ने जब भी हिस्ट्री की बात करनी है, आपने गॉर्डन फंक्शन हेल्थ पैटर्न 11 जो है वो उनको अपने माइंड में रखना है, ठीक है बेटा। उसके जो है वो मुताबिक पे आपने क्वेश्चन अपने माइंड में सेटअप कर लेने हैं और हिस्ट्री कलेक्ट करनी है और फोकस करना है आपने उस सिस्टम को जिस सिस्टम के ऊपर आप फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए परफॉर्मिंग करनी है, ठीक है। हिस्ट्री में हम सबसे पहले पेशेंट से क्या पूछेंगे? फिजिकल प्रॉब्लम। डेफिनेटली हम प्रेजेंटिंग कंप्लेन, करंट चीफ कंप्लेन के साथ जो पेशेंट हमारे पास आ जाता है प्रेजेंटिंग कंप्लेन के साथ, तो हम उसके मुताबिक हिस्ट्री लेते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम क्या है पेशेंट्स का? मे बी उसको नज़ला ज़ुकाम फ्लू है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, या कोई सीओपीडी वाला पेशेंट्स है, एस्थमेटिक है, ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, सीजनल एलर्जी है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने फिजिकली सबसे पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है। डेफिनेटली पेशेंट आपके पास आता है तो वो आपको अपनी करंट कंप्लेन बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, ठीक है। ओके, लाइफस्टाइल हिस्ट्री हम लेते वक्त पेशेंट से हम पूछते हैं लाइफस्टाइल, स्मोकिंग तो नहीं करता, ऑफिस वर्क है, समटाइम पेशेंट जो है वो एडिक्ट होते हैं, ठीक है, पर पैक जो है वो 4-4 5-5 सिगरेट के जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है, कोई उसकी रेस्पिरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ब्रोंकाइटिस तो नहीं है, एस्थमेटिक तो नहीं है, कोई एलर्जी तो नहीं है, ठीक है।
ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री हम कलेक्ट करते हैं, एलर्जन, इन्वायरमेंटल कोई भी है, किस जगह पे काम कर रहा है, ठीक है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कॉटन में है, मार्बल में है, ये सब चीज़ें सिलिकॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं। रिक्रिएशनल एक्सपोजर, वो किस जगह पे अगर कोई एथलीट्स है या कुछ ऐसा है तो पॉइंट ऑफ व्यू से हम उससे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जी, एंजाइटी, क्योंकि एंजाइटी भी कॉज करती है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को, तो हम उससे पूछेंगे कोई घर के, मतलब जब हम फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उसका पूछते हैं, कोई फैमिली हिस्ट्री उसकी पूछते हैं, तो डेफिनेटली हमें कोई ना कोई कॉज मिल जाती है। जी, साइन एंड सिम्टम, ठीक है, तो आपके पास पेशेंट आया तो आप साइन एंड सिम्टम में देखेंगे कि पेशेंट आपसे नॉर्मल टॉक कर रहा है या वो बात कर रहा है, उसकी नेजल जो है वो फ्लेयर्स हो रही हैं, फ्लेयर अप हो रही हैं, या उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, वो मतलब स्वेटिंग हो रही है, ये सब चीज़ें आपको बेस में जो है वो आप उसको असेस कर सकती हो। जी, थैंक यू बेटा। क्लियर है ये स्लाइड? ओके जी, एनी रिस्क फैक्टर्स फॉर रेस्पिरेटरी डिजीजेस, ऑलरेडी हमने पिछली स्लाइड्स पे मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि हम रिस्क फैक्टर्स पेशेंट्स के कौन कौन से हिस्ट्री पूछ सकते हैं। जैसे स्मोकिंग की बात की, पैक की बात की मैंने कि वो कितने पैक पर डे ले रहा है, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ईयर्स के साथ कि वो जैसे सपोज 5 कर रहा है तो वो एक साल में 12 मंथ है, तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे कि वो इतना ले रहा है, तो उसके लंग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, एक्सपोजर टू स्मोक, हो सकता है कि उसकी फैमिली में उसका फादर, मदर या कोई और उसके फ्रेंड जो है वो स्मोक करते हैं, वो नहीं करता, तो उसमें एक्सपोजर नहीं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ अटेम्प्ट टू क्विट मेथड रिजल्ट, हो सकता है कि उसने जो है वो स्मोकिंग कर रहा था, उसने अब क्विट करने की कोशिश की है, तो वो नहीं क्विट कर सका, क्या मेथड यूज़ किया था, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्योंकि जो एडिक्ट हो जाता है या स्मोकिंग है या इस तरह की कोई भी बैड हैबिट्स आ जाती हैं, तो वो पेशेंट जल्दी से जो है कूप नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए हम उससे सारी चीज़ें पूछेंगे कि आपने क्विट का मेथड क्या यूज़ किया था और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए। ठीक है, सेडेटरी लाइफस्टाइल में इमोबिलाइजेशन है, या वो ऑफिस वर्क करता है, चेयर पे बैठा रहता है, या कोई फार्मर वगैरह है। ठीक है, एज क्या है उसकी, एज ग्रुप भी बहुत मैटर करती है। ठीक है, यंग है, ओल्डर एडल्ट है या मिडिल एज है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, जिस तरह हमने पहले भी बात की कि वो किस जगह पे काम कर रहा है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल में हम पूछते हैं ना उसके, कहीं वो डस्ट में तो नहीं कहीं कर रहा। ठीक है, मार्बल की जैसे मैंने बात की, केमिकल फैक्ट्री में तो नहीं, उसका भी केमिकल्स का भी स्मोक होता है, एस्बेस्टोस हो सकता है, एयर पोल्यूशन है उसको। ठीक है, ये एस्बेस्टोस मोस्टली कॉटन फैक्ट्रीज में जो पेशेंट्स को हो जाते हैं, सिलिकॉन एस्बेस्टोस, ये डिजीज डेवलप हो जाती है। एयर पोल्यूशन ऐसी है, ओबेसिटी उसकी लाइफ स्टाइल अगर वो खा लिया, पी लिया, बैठ गया, मेल और फीमेल है, तो ये आप देख सकते हो कि ओबेसिटी की वजह से भी जो आपको एपिग्लोटिस है वो क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है, और पेशेंट जो है वो प्रॉपरली स्लीप नहीं कर सकता। जिस तरह हम कहते हैं खराटे बहुत लेते हैं, तो उनको ऑलमोस्ट एपिग्लोटिस जो होता है उसके मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, डेफिनेटली अगर हम पेशेंट से हिस्ट्री ले रहे हैं तो हम फैमिली हिस्ट्री को जो है फॉरगेट नहीं कर सकते, इसको भी हम साथ लेके चल रहे हैं। इज इट क्लियर बेटा? ओके जी, हमने पहले देखा कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, हिस्ट्री से पूछी। अब देखते हैं कि पेशेंट्स के साइन सिम्टम के मुताबिक के पेशेंट को कफ तो नहीं है। अगर कफ है तो किस टाइप की है। ठीक है, ड्राई है, मॉइस्ट है, वेट है, प्रोडक्टिव है, हॉर्स है, हिकिंग है, ब्रेकिंग है, वूपिंग है, सो मेनी टाइप्स ऑफ द कफ। ठीक है, मे बी उसने कोई चीज या खा ली है इस तरह की, ऑयली है, ड्राई उसको कफ है, बहुत देर से चल रही है उसकी, मॉइस्ट है, प्रोडक्टिव कफ है। ठीक है, तो उसकी जो है हिकिंग है, जिसे हम हिस्ट्री वगैरह इस कह सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम उससे कंफर्म करेंगे टाइप्स में पूछ के। पेशेंट खुद ही आपको बताएगा कि मुझे बलगम आ रही है, मुझे ड्राई कफ है, सो मैनी रीजंस आप वो बता देंगे आपको। जी, ऑन सेट है, स्टार्ट कब हुई है, उसको ड्यूरेशन पूछेंगे, बड़ी देर से हो रहा है या अभी रिसेंटली वीक हुआ है आपको स्टार्ट हुआ है, या आपने कोई हो सकता है उसका थ्रोट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हो रहा है, तो हम ये उसकी रीजन को फाइंड आउट करेंगे। पैटर्न किसकी एकदम से वो आपको जो है कफ स्टार्ट हो जाती है, ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद होती है। ठीक है, मोस्टली एस्थमेटिक पेशेंट अगर कोई पोलन या डस्ट में जाते हैं तो उनको भी जो है वो हल्की सी कफ होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से बेटा हेकिंग कफ में ऑलमोस्ट क्या होता है कि मतलब बच्चे जो है वो हिचकी की, मैंने पहले ही आपको बात की कि हिचकी की तरह होती है कफ। ठीक है, हिचकी की तरह वो कहेंगे कफ है, तो ये भी एक टाइप है। ठीक है, ओके जी,
पैटर्न में क्या हम देखेंगे, उसकी एक्टिविटी टाइम पे होती है या उस वेदर के मुताबिक भी हो सकती है। समटाइम पेशेंट को स्ट्रेस की वजह से भी जो है, कुछ को एंजाइटी जो है, वो डिप्रेशन भी जो है, खांसी स्टार्ट हो जाती है, कफ हो सकती है, ठीक है, काम करता है या डस्टिंग करता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो जाता है, ठीक है जी। सीवियरिटी एफर्ट ऑन एक्टिविटी डेली लिविंग, अगर हो सकता है सीवियरिटी कब होती है, जब वो काम करता है या रेस्टिंग पीरियड में हो जाती है। जब होता है तो हमें कफ की भी देखनी है ना, वीजिंग तो नहीं है। एस्मेटिक पेशेंट में मोस्टली आपको फौरन से पहले पता चलेगा, अगर वो स्टेयर क्रैम्प करता है या कुछ भी है, या थोड़ा सा चलता है, तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी और वीजिंग होगी। ये टिपिकल एस्थमेटिक पेशेंट्स की है, ठीक है। एसोसिएटेड सिम्टम देखेंगे हम, ट्रीटमेंट और इफेक्टिवनेस। डेफिनेटली अगर पेशेंट्स की प्रीवियस कोई हिस्ट्री है तो उसमें क्या होगा, हम पेशेंट से पूछेंगे कोई ट्रीटमेंट प्रीवियसली ले रहे हैं, क्या वो इफेक्टिव भी है या नहीं। इज इट क्लियर? जी बेटा, समझ आ रही है सबको? क्लियर है सबको? यहाँ कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है जी, सुमैया शायद क्लियर हो गया आपको कफ के बारे में। ड्राई मोस्ट, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि में मोस्टली क्या होता है कि मतलब येलो कलर की ये जो है वो बलगम और इस तरह की चीजें आ सकती हैं, ठीक है। जैसे हम बुकिंग का बहुत ज्यादा जैसे छींकते हैं तो बाहर से फ्यूम बाहर निकल रहे हैं, हिकिंग में ऑलमोस्ट होता है वो येलो बलगम वगैरह जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है और हिकिंग की तरह होती है जिस तरह। जी, स्पूटम, डेफिनेटली अगर पेशेंट का हम स्पूटम को एग्जामिन करते हैं, क्योंकि हम उसकी हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम स्पूटम का अमाउंट देखेंगे, ठीक है, कलर, प्रेजेंस ऑफ अ ब्लड। ओके, थैंक यू। जिस भैया बेटा आपने ये कहा था कि मतलब हेकिंग के बारे में, हेकिंग में वही है जो बलगम येलो कलर की है, क्या कलर है उसका उस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने आपको क्लियर किया है। एक्टिविटी सोनिया, एक्टिविटी डेली लिविंग, ठीक है बेटा, इसका मतलब है ईडीएल का एक्टिविटी डेली लिविंग में, कि उसने जो वो काम करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई इश्यू नहीं है, उसको काम करते वक्त तो उसकी सीवियरिटी होती है, ये रेस्टिंग पीरियड में ही उसकी है वो सांस में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम कम टू पॉइंट ऑन स्पूटम। स्पूटम में हम अगर हम पेशेंट का असेस करते हैं तो उसमें हम देखते हैं स्पूटम अमाउंट कितनी है, ठीक है, वो वाइट कलर का है। जी बेटा, यही है एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। जी, उसमें अमाउंट देखेंगे, अमाउंट कितनी है, कलर देखेंगे, वाइट है, येलो है, ब्लडी है, ये सब चीजें देखेंगे। समटाइम पेशेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा कफ कर रहे होते हैं तो उसमें कैपिलरी रप्चर हो जाती है, तो हम समझ रहे हैं कि वो ब्लड आ रहा है, ठीक है। अगर फ्रेश है तो आप सस्पेक्ट कर सकते हो, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ब्लड अगर हम उसके अंदर स्पूटम के, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं हीमोपेटेसिस भी हो सकती है, या कोई कैपिलरी जो है वो भी उसकी रप्चर हुई हुई है। जब हम जोर से जो है, अगर आपने देखा होगा कफ करते हैं तो वो ब्लड के पार्टिकल्स भी आ सकते हैं। अगर नोज की बात अगर करके, नोज ब्लॉकेज हो जाती है, हमारा साइनसाइटिस हो जाता है मोस्टली नजला जुकाम के बाद, ठीक है, तो क्या होता है कि हम जब ब्लो करते हैं जोर से तो उसमें भी सम पार्टिकल जो है वो ब्लड के आ जाते हैं। रुका हुआ था जी सुमैया, क्या हुआ बेटा? क्लियर नहीं है वॉइस? अभी क्लियर है सुमैया? यूसुफ है आई थिंक। जी बेटा, आई थिंक मेरी तरफ तो कोई इशू नहीं है नेट का। ओके, यू कैन चेक ऑन योर नेट। ऑर्डर कोई स्मेली तो नहीं है, कंसिस्टेंसी उसकी देखनी है, ठीक है, पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन देखनी है कि उसमें पस है या क्या चीजें हैं। इसमें यह शायद क्लियर है। ओके, थैंक यू बेटा, आप लोग अपना नेट चेक करें, हो सकता है सिग्नल्स इशू हो सकते हैं। तो ये स्पूटम में नॉर्मली भी हम सब देखेंगे, स्मेली तो नहीं है, उसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे कि मतलब नॉर्मल सा फ्लूइड टाइप है या कोई स्टिक की तरह है, पैटर्न में देखेंगे उसकी प्रोडक्शन क्या थी, थिक किस्म का है या मिक्सअप है। ओके, थैंक यू बेटा नौरीन, क्लियर है। ओके जी, साइनोसिस, क्योंकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को रिव्यू कर रहे हैं तो हम हर चीज को देखेंगे, हम पेशेंट्स की कफ की भी देखेंगे, ठीक है, उसमें हम पेशेंट का स्पूटम भी देखेंगे क्योंकि हमने पेशेंट को डायग्नोज करना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। साइनोसिस, अब साइनोसिस में हमें पता है कि पेशेंट्स को जो है सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, ऑक्सीजन की जरूरत है,
तो ऑब्वियसली हम ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी, बेटा आर यू डू यू नो कंसिस्टेंसी? मैं तो बहुत सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी, कंसिस्टेंसी क्या है जी शुमाइला? कंसिस्टेंसी क्या है? एक उसमें एक सीक्वेंस है, लगातार है, या जो है वो स्टिकी की तरह, मैंने पहले ही आपको बता दिया। कंसिस्ट है, ठीक है, जैसे फ्लूइड सेपरेट है, उसके अंदर वो चीजें हैं, या एक स्टिकी की तरह एक स्ट्रीक बना हुआ है, ठीक है जी। डिस्कलोरेशन, इसमें हम क्या देखेंगे? साइनोसिस में ब्लूइश डिस्कलोरेशन है उसकी, ठीक है। आपको प्रोमिनेंट नजर हो जाएगा पेशेंट्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले को, जिनमें ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड जो है ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं है, सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या हम देखेंगे? पेशेंट्स के लिप्स के ही आपको पता चल जाएगा कि उसके ब्लूइश कलर के हैं, अगर उसने लिपस्टिक नहीं लगाई, फीमेल है या मेल है, डिपेंड अपॉन हिज और हर पेशेंट्स, ठीक है। और सेकेंडली क्या करेंगे? उसके साइनोज होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, प्रॉपरली बात नहीं करेगा, स्वेटिंग भी होगी उसकी, ठीक है। और फ्लेयर अप होगी उसकी, नेजल जो होंगे, ये नोस्ट्रिल जो है वो फ्लेयर करेंगे, ठीक है, एक्सपेंड होंगे। तो ये हम फिंगर नेल से भी देख सकते हैं जी। ओके जी। क्लबिंग, क्योंकि हो सकता है पेशेंट्स आपका जो है वो कार्डियक पेशेंट है, ठीक है, कार्डियक पेशेंट्स हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, ये भी हमने असेस करना है। क्लबिंग ऑफ नेल रेस्पिरेटरी, जब कार्डियक पेशेंट होगा, रेमटाइड पेशेंट्स वाले जो होते हैं, रेमटाइड हार्ट डिजीजेज वाले बच्चों में, तो आपको उसमें क्लबिंग भी मिलेगी और साइनोसेशन भी मिलेगी, ठीक है। साइनोसिस आपको क्लब नेल भी मिलेंगे। क्लबिंग नेल कैसे होते हैं? ऊपरी उभे जो होते हैं हमारे प्रोमिनेंट हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जीगेटेड क्या होगा? इंटीरियर पोस्टीरियर एंड लॉन्गिट्यूडनल कर्वेचर्स ऑफ द नेल। नॉर्मल कर्वेचर्स क्या है हमारा? नॉर्मल कर्व क्या है बेटा? डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल कर्व मैंने कितना आपको नेल असेसमेंट में पढ़ाया है? स्किन हेयर नेल असेसमेंट की अगर हम बात करें तो नॉर्मल जो है उसका डायमीटर्स क्या है? क्योंकि मेरा, मैं भी आपसे बेटा इंटरैक्टिव सेशन कर सकती हूँ। आई नीड योर आंसर स्टूडेंट्स। अगर हम डायमीटर्स की बात करते हैं कि नॉर्मल नेल का जो है वो लॉन्गिट्यूडनल कर्वेचर्स में अगर हम बात करते हैं, नॉर्मल नेल कितना होना चाहिए, क्या हम इसको लेबल करें कि ये नॉर्मल है? इसका स्किन हेयर नेल्स में हमने पढ़ा है एंगल कितना था? एनी स्टूडेंट्स? ओके, एग्जैक्टली बेटा 180, ठीक है, 180 160 हम कंसीडर कर लेते हैं। गुड, थैंक यू बेटा। इट मीन्स कि आप लोगों ने जो है वो याद रखा हुआ है कुछ। ओके, तो इसमें क्या हम क्लबिंग नेल, अगर हम उसको किस तरह लेबल कर सकते हैं कि एग्जीगेटेड इंटीरियर पोस्टीरियर और लॉन्गिट्यूडनल कर्वेचर जो होगा वो क्या होगा? ऑफ द नेल जो है वो उभरा हुआ होगा, और लॉस होगा एंगल इसका बिटवीन नेल एंड नेल बैक में, डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द, इसको हम लोविडॉन डायमंड साइन भी कहते हैं, ठीक है। और ड्रम स्टिक की तरह भी है, और पैरेट बिग विंग की अपीयरेंस है, जिस तरह हम चोंच कहते हैं ना उसकी, तोते की, पैरेट की, इस तरह की इसकी नेल की अपीयरेंस है। इज इट क्लियर? और डायमंड साइन भी इसको हम लिवोडॉन डायमंड शेप भी इसको हम कहते हैं, ओके। क्लबिंग नेल जस्ट लाइक उभरे हुए नेल्स हैं। आपको क्लिनिकली, आप लोग बहुत एक्सपर्टीज है माशाल्लाह, एक्सपीरियंस हो तो ये देख के ही आप बता सकती हो। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी देख सकते हैं, और जिनके जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ पेशेंट्स को कार्डियक इशू होता है, कार्डियक इशू की वजह से उनका जो है वो रेमटाइड हार्ट डिजीजेज हो जाते हैं, ऑलमोस्ट ये हमारे बच्चों में होती हैं, 18 ईयर्स तक होती हैं ये डिजीजेस जी। पास्ट हेल्थ हिस्ट्रीज,
पास्ट हेल्थ हिस्ट्रीज में हम डिस्कस क्या करेंगे कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या कोई अपर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डिजीज भी हो सकती है, ठीक है, कोई डिजीज भी हो सकती है और इन्फेक्शन भी हो सकती है, जैसा कि ट्रॉमा है, कोई प्रीवियस उसकी सर्जरी हुई है, ट्रॉमा मीन रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है या कुछ उसका कोई गिर गया है, कुछ भी है, फैक्ट्रीज में काम करता है तो कोई भी इंजरी हो सकता है और वो ट्रॉमा रिपेयर हुआ है उसकी सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई क्रॉनिक कंडीशन जिस तरह हमने अदर सिस्टम क्रॉनिक कंडीशंस हैं ऑफ अ अदर सिस्टम, ठीक है। फैमिली हेल्थ हिस्ट्रीज में हमें फैमिली हेल्थ हिस्ट्री भी कलेक्ट करना जरूरी है ताकि हम उसकी एक्यूरेट फाइंडिंग्स कर सकें कि उसमें ये डिजीज है, ये हो सकती है। ट्यूबरकुलोसिस, एम्फीजीमा, ठीक है, जैसे हम एम्फीजीमा सर्जिकल एम्फीजीमा सर्जरी हुई है तो हम उसको कोरिलेट करेंगे कि इसका सर्जिकल एम्फीजीमा हो सकता है। कोई लंग कैंसर है, डेफिनेटली हमने स्मोकिंग की हिस्ट्री बात की तो उसमें लंग कैंसर के चांसेस हैं। एलर्जी है, कोई पोलन है किसी वो उसका जो है वो हम इन्वायरमेंटल एक्सपोजर देख लेते हैं ऑक्यूपेशंस, उससे एलर्जी हो सकती है उसको, ठीक है। एस्थमेटिक पेशेंट है तो हमें हिस्ट्री से ही पता चल जाएगा इस पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री एस्थमेटिक है तो बेबी पेशेंट सस्पेक्टेड इसकी क्या हो सकता है, एस्थमेटिक हो सकता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक आपको? ओके जी, अब हमने तो ये सब चीज़ें देख ली, फैमिली हिस्ट्री देख ली, हमने उसकी सारी सोशल हिस्ट्री देख ली। अब हमने देखना है कि हम उसको असेस करने के लिए थोरेक्स को इंटीरियर एस्पेक्ट में हमने उसकी लैंड मार्किंग करनी है, ठीक है। जिस तरह हमने एब्डोमिनल असेसमेंट में पढ़ा कि हम इसकी लैंड मार्किंग करते हैं ताकि हमें जो है वो अंदाज़ा हो जाए कि हम जिस सिस्टम को रिव्यू कर रहे हैं इसके अंडरलाइन कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, ठीक है, इसके अंडरलाइन स्ट्रक्चर ऑर्गन्स कौन कौन से हैं ताकि हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। इज इट क्लियर? ओके, जिसमें हमारे पास इंटीरियर एस्पेक्ट में हम सरफेस लैंडमार्क की बात कर रहे हैं। ओके, सर्विस लैंडमार्क क्या है कि हम एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको लैंड मार्किंग करते हैं जिसको हम इमेजिनरी लाइन भी कहते हैं। एनाटॉमिकल इमेजिनरी लाइन भी हम इनको कहते हैं और हम इसको लैंड मार्किंग भी कहते हैं ताकि हम उसको इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लें और हमें पता हो कि इसके अंदर जो है वो इसके इस लाइन के इमेजिनरी लाइन लैंडमार्क के नीचे कौन कौन से ऑर्गन है और उसका कौन कौन सा पार्ट आ रहा है। इज इट क्लियर? आई नीड योर कमेंट स्टूडेंट्स। जी, जिसमें हमें पता है कि ये सुप्रास्टर्नल नोज है, ठीक है, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हमारा फोकस है तो हम उसमें देख रहे हैं कि सुप्रास्टर्नल नोज है, ठीक है, स्टर्नल एंगल और जिफिस्टर्नल जॉइंट, सब कोस्टल एंगल, कोस्टल मार्जिन, क्रेविकल, रिब्स और एक्सली फोल्ड, इन सब चीज़ों को हमने अपने माइंड में रखना है जब भी हम सरफेस की लैंड मार्किंग करेंगे और इंटीरियर एस्पेक्ट की हम बात करें क्योंकि हम पोस्टीरियर चेस्ट और इंटीरियर चेस्ट की हम बात करेंगे। तो इसमें क्या है, थोरेसिक में इंटीरियर एस्पेक्ट में हमारे सामने क्या जाती है, स्टर्नल नोज है, फिर स्टर्नल एंगल है हमारा और जिफिस्टर्नल जॉइंट है, सब कोस्टल एंगल है हमारा, कोस्टल मार्जिन है, क्लेविकल है, रिब्स हैं और एक्सट्री फोल्ड्स हैं। इज इट क्लियर? ओके, this is a clear view of the surface line making, supraclavicular spaces, inferior clavicular spaces, ठीक है, और पेरिकार्डियल स्पेसिस और टर्बो स्पेस, ठीक है। टर्बो स्पेस, पेरिकार्डियल स्पेसिस, ये सब चीज़ें आई विल डिस्कस लेटर ऑन के टर्बो स्पेस क्या है, ठीक है। ये एक छोटी सी स्पेस है हमारे हार्ट के दरमियान में, ठीक है, जहाँ हार्ट से सिचुएटेड है उसके ऊपर थोड़ी सी हमारी जो है वो टर्बो स्पेस आ जाती है, ठीक है। ये डिटेल में आपको मैं बताऊंगी। ये हमारा थोरेसिक केज, ठीक है, ये क्या है आपकी मेनिब्रम, बॉडी और जीफी प्रोसेस, ये आपकी क्या है, रिब्स हैं, 12 रिब्स, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि सामने से क्या है आपकी स्पाइनल कार्ड के साथ जो है वो बैक साइड से स्पाइनल कार्ड के साथ अटैच है, फ्रंट से ब्रेस्ट बोन इसको कहते हैं, ठीक है, और ये कार्टिलेज बोन्स हैं। 2 हमारी क्या है, फ्लोटिंग लिम्स है, बैक से तो वो अटैच है, फ्रंट से क्या है वो फ्लोट कर रही है क्योंकि ये रिब्स हैं और ये कार्टिलेज है येलो कलर की, तो इसके साथ ये सब चीज़ें अटैच है। इज इट क्लियर? ये इंटीरियर व्यू है आपका चेस्ट का, इसको हम थोरेसिक कैच करते हैं, केज। जी, अब जो हम लैंड मार्किंग की बात कर रहे हैं तो हम लाइन ऑफ ओरिएंटेशन भी इसको कह सकते हैं, हम एनाटॉमिकल मैपिंग इसको कहते हैं, काइंडली राइट डाउन द एनाटॉमिकल मैपिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, इसको हम इमेजिनरी लाइन भी कहते हैं। कीप इन माइंड के मैंने कितने वर्ड यूज किए हैं, एक तो सरफेस लैंड मार्किंग का वर्ड यूज किया मैंने,
इमेजिनरी लाइन, एनाटॉमिकल मैपिंग, और फोर्थ वन क्या है, लाइन ऑफ ओरिएंटेशन। ठीक है, लाइंस ऑफ ओरिएंटेशन में क्या है कि हमने जब चेस्ट को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि हमने इसमें 4 टेक्निक्स यूज करनी है, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड आस्कल्टेशन। ठीक है, तो इसमें हमें लाइन ओरिएंटेशन जो है वो हमने लाइंस देखनी है कि मिड स्टर्नल लाइन, ठीक है, मिड स्टर्नल लाइन में एक ड्रॉ करेंगे इमेजिनरी लाइन। ये नहीं कि पेशेंट्स के ऊपर आपने जो है वो लाइनें ड्रॉ करनी स्टार्ट कर देनी उसकी चेस्ट पे। ठीक है, पेशेंट की प्राइवेसी और रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखना है हमने। उसको जो है वो हमने अपनी इमेजिनरी लाइन इसलिए कहा कि अपने माइंड में इमेजिन करनी है कि यहाँ ये लाइन है। ठीक है, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, मिड लाइन, मिड स्टर्नल लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है, इंटीरियर एक्सरे लाइंस, पोस्टीरियर एक्सरे लाइंस और मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, और स्केपुलर लाइन, क्योंकि हमने इंटीरियर स्पेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से और पोस्टीरियर भी दोनों ही हमने मार्किंग करनी है। मिड स्टर्नल लाइन हम स्टर्नर के मिड में करेंगे, ठीक है, जो हमारे माइंड में कि यहाँ मिड स्टर्नल लाइन है। मिड क्लेविकुलर लाइन हम राइट और लेफ्ट दोनों ही इमेजिनरी अपनी लाइन में रखेंगे। जी बेटा, अच्छा समझ नहीं आ रही है? आई विल डिस्कस। ओके, लाइंस ऑफ ओरिएंटेशन, क्योंकि हम लैंड मार्किंग की अगर हम बात करते हैं तो 4 किस्म की अपने माइंड में रखें। लैंड सरफेस लैंड मार्किंग, ओके, सरफेस लाइन मैपिंग भी हम इन लाइंस को कहेंगे, और एनाटॉमिकल मैपिंग, एनाटॉमिकल मैपिंग, अगर मैं कहती हूँ ड्रॉ द एनाटॉमिकल मैपिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, तो यही चीज लाइनें आपने ड्रॉ करनी है। अगर मैं कहती हूँ ड्रॉ द इमेजिनरी लाइन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तब भी आपने यही आंसर करना है। अगर मैं कहती हूँ कि ड्रॉ द लाइंस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो तब भी यही लाइंस है, क्योंकि मिड स्टर्नल लाइन है जो कि आपके स्टर्नर से लेकर सीटी प्रोसेस तक होगी। ठीक है, और मिड क्लेविकुलर जो कि आपने राइट और लेफ्ट जो है वो इमेजिनरी लाइन जो है अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि आपने परकस करना है अपने लंग्स को, पेशेंट्स को। इंटीरियर एक्सरे लाइन जो कि सामने आपके एक्सरा के सामने होगी। ठीक है, मिड एक्सरे लाइन जो आपके मिड में यहाँ होगी। ठीक है, इंटीरियर की होगी फ्रंट पे आपकी होगी, और जो मिड होगी आपकी एक्सरे लाइन वो एक्सरा के मिड में होगी। पोस्टीरियर एक्सरे लाइन, ठीक है, जो कि आपकी बैक साइड पे पोस्टीरियर आ जाएगी। स्केपुलर लाइन हम क्या करेंगे, जो स्केपुला के ऊपर राइट और लेफ्ट हम जो है वो उनको लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये इमेजिनरी लाइन है, ये नहीं कि आपने पेन और रूलर के साथ पेशेंट्स के ऊपर ड्रॉ कर लेनी है, जस्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि ये आप कहाँ से उसको परकस कर रहे हैं। इज इट क्लियर? जी स्टूडेंट्स, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग ऑफलाइन क्यों हो रहे हो? आई थिंक 28 स्टूडेंट्स गए हैं। दिस इज़ वेरी बैड थिंग कि हम लोग ये आपके लिए स्पेशल टाइम निकाला जाता है लेक्चर्स के लिए, और आप जो है वो ग्रेजुअली ऑफलाइन हो जाते हैं। वाई? जी बेटा, इसमें आपका नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हो। ओके जी, दिस इज़ अ क्लियर कंसेप्ट फॉर यू। दिस इज़ अ चेस्ट। जी आई नो बेटा, आप लोग प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट है मुझे नज़र आ रहे हैं 28 थे, जिसमें 24 स्टूडेंट्स रह गए हैं। ओके, डजेंट मैटर, जो स्टूडेंट्स हैं वो तो लेक्चर अटेंड करें। जी बेटा, ये क्लियर इमेज है आपके सामने कि हम इमेजिनरी लाइन कहाँ कहाँ करेंगे। जिस तरह मैंने पीछे आपको प्रीवियसली लाइव में बताया कि लाइंस ओरिएंटेशन में क्या है कि मिड स्टर्नल लाइन है, मिड क्लेविकुलर क्या है, क्लेविकल के आपके मिड में आपने लाइन ड्रॉ करनी है जो कि राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे होगी। इंटीरियर एक्सरे लाइन का जो है कि हमारी इंटीरियर साइड्स पे चेस्ट पे होगी। ठीक है, मिड एक्सरे लाइन जो होगी वो उसकी मिड में एक्सला की होगी, और पोस्टीरियर भी यही होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ आपको? ये इंटीरियर मिड लाइन एक्सट्री लाइन का आपको क्रॉस सेक्टर बताया हुआ है। जी, ये भी लाइंस ऑफ ओरिएंटेशन जैसे मैंने बताया कि ये इंटीरियर वाली साइड पे है, आपकी ये मिड एक्सट्री लाइन है जो कि आपकी मिड में है। ओके जी बेटा, क्लियर है आपको कि किस तरह हमने लाइंस को ड्रॉ करना है? ये पोस्टीरियर है, ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर लें। ये क्या है आपकी, आपको जिस तरह हमने मिड स्टर्नल लाइन की, इसी तरह ये जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम पे है, स्पाइनल कार्ड पे आपने मिड में कर लिया, और आपने जो स्केपुलर लाइन जो है मिड स्केपुलर लाइन जो है आपकी
राइट और लेफ्ट होगी। ये मैं प्रीवियस स्लाइड्स को आपको क्लियर कंसेप्ट सबके बता दूं कि इसमें कौन कौन सी लाइन है। जो हमने लाइंस पढ़ी हैं जी, यहाँ से हमने देखा कि लाइंस और ओरिएंटेशन है, मिड स्टर्नल लाइन है, मिड क्लेविकुलर है, इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सरी लाइंस है, ठीक है, मिड एक्सरी लाइन है और स्केपुलर लाइन है। तो इसमें आपको क्लियर कंसेप्ट है, ठीक है बेटा। यहाँ सामने मिड स्टर्नल लाइन है आपकी, ये सेकंड वन जो है, कर्सर आई थिंक मेरा मूव करता हुआ नजर आ रहा होगा जी। तो इसमें आपकी मिड क्लेविकुलर लाइन है, ओके। और नेक्स्ट थर्ड लाइन जो है जिसके ऊपर मेरा कर्सर आपको शो हो रहा होगा, ये क्या है, आपकी इंटीरियर एक्सट्री लाइन है। इसके ऊपर साफ क्लियर लिखा हुआ है कि ये मिड स्टर्नल लाइन है, इसके टॉप पे मिड क्लेविकुलर है और डाउन पे क्या है, राइट इंटीरियर एक्सट्री लाइन है। इज इट क्लियर? ओके लीला, थैंक यू। अब लाइन ऑफ ओरिएंटेशन में हमने मिड एक्सट्री लाइन को शो किया, तो ये मिड एक्सट्री लाइन है और इंटीरियर अगर नहीं समझ आ रही तो वो भी यहाँ क्लियर कंसेप्ट है। इज इट क्लियर? ओके। बैक साइड की बात की, जब हम मिड स्टर्नल की बात करते हैं तो ये मिड स्पाइनल आपकी लाइन है, ठीक है। और क्या है आपकी स्केपुलर लाइन है, राइट और लेफ्ट दोनों की तरफ भी हम करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ओके जी। डायफ्राम की मैंने बात की थी कि मेन मसल्स है और डूम शेप क्या है, जो नजर आ रहा है आपको, डूम शेप क्या है, जिसने सेपरेट किया हुआ है चेस्ट कैविटी को और अब्डोमिनल कैविटी में। और इसके साथ कुछ ऐसे मसल्स हैं जो कि हमारी ब्रीदिंग में जब हम इनहेल और एक्सेल करते हैं तो डायफ्राम की हेल्प करते हैं मूवमेंट में, ब्रीदिंग में, क्योंकि वो एक्सपेंड हो जाते हैं लंग्स, तो ये थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं जो बी साइड जो है उसके मसल्स होते हैं, ठीक है। ओके जी बेटा, ये ऑलरेडी मैंने आपको ड्रॉ करके बता दी थी, जो सामने इमेजेस थे वही चीज आपको है। स्पाइनस प्रोसेस है जो कि एक थोरेसिक वर्टिब्रे के बैक साइड पे आपने देखा होगा, हमारी नेक के ऊपर आप जब डाउन करते हो अपनी नेक को तो एक उभरा हुआ एक प्रोसेस आपको नजर आएगा, तो उसको हम स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है उसको हम कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस। अगर सब अपनी नेक को मूव करें तो आप अपने बैक साइड पे टच करेंगे नेक के ऊपर, तो एक आपको उभरा हुआ वर्टिब्रा नजर होगा, जहां से इसको हम कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस। और यहाँ से हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा स्टार्ट हो जाता है जी। स्कैपुला क्या है, हमारा सुपीरियर एंगल और इंफीरियर एंगल की अगर हम बात करते हैं जी, दिस इज अ कंसेप्ट, क्लियर कंसेप्ट फॉर यू। सुपीरियर एंगल, ठीक है, ये स्कैपुला का सुपीरियर एंगल है। ये एक्रोमियम है जहां हमारी वो ग्लूनाइड कैविटी में फिक्स हो जाता है। ये आपकी स्पाइन है, ठीक है। मीडियल बॉर्डर है उसका, लेटरल बॉर्डर है, हमारी स्कैपुला की बात हो रही है। और ये क्या है, उसका इंफीरियर एंगल है। इज इट क्लियर? ओके। ये हम स्केपरा के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि एक्रोमियम किधर है, हमारा सुपीरियर एंगल है। आई थिंक इसकी इतनी आपको जरूरत नहीं है, जस्ट आपको कंसेप्ट हो कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। ओके, दिस इज अ सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा और इसको हम स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं जी। सेवन सीज भी कहते हैं और इसको हम स्पाइनस प्रोसेस भी कहते हैं। और ये क्या है, यहाँ से हमारा थोरेसिक का फर्स्ट वर्टिब्रा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इज इट क्लियर? ओके जी बेटा। वी आर यूजिंग अ टेक्निक ऑफ रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन, तो इसमें हम 4 टेक्निक ही यूज करेंगे रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन के लिए। बिफोर बिगिनिंग इफ पॉसिबल आपको पता होना चाहिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कीप इन माइंड कि आपने कौन कौन से बिगिनिंग पॉइंट जो है वो पॉसिबल हैं, आप उस टेक्निक को मेंटेन कर सकते हैं। क्वाइट आपकी इन्वायरमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर पोजिशनिंग, पेशेंट सिटिंग फॉर पोस्टीरियर थोरेसिक के लिए, ठीक है। नहीं, आप अगर पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, आपका पेशेंट जो है वो क्लिनिकली जो है वो फिट नहीं है, तो आप उसके प्रॉपर बेड को कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें हम बैक साइड जो है वो ऑलमोस्ट हम क्या करते हैं, पेशेंट की सिटिंग पोजीशन में लेते हैं पोस्टीरियर। फ्रंट हम पेशेंट्स को जो है वो थोड़ा सा अप डाउन पोजीशन में कर सकते हैं। स्पाइन फॉर इंटीरियर थोरेसिक एग्जामिनेशंस जी। एक्सपोज स्किन फॉर आस्कल्टेशन, ऑब्वियसली हमें पता है कि हमें जो है बेसिक रूल्स को, कुछ चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि हमने पेशेंट्स की प्राइवेसी को मेंटेन करना है, पेशेंट्स को कंफर्टेबल रखना है। एट द बिगनिंग व्हेन वी आर स्टार्टिंग कलेक्टिंग द हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट, डेवलप रेपो विद द पेशेंट, डोंट फॉरगेट डेवलप रेपो विद द पेशेंट्स, क्योंकि हम पेशेंट के ट्रस्ट को जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं ताकि पेशेंट्स आपको हिस्ट्री प्रॉपर वे में दे और आपसे कोऑपरेट करें। You can collect history from the patient easily if you are developing a good rapport with the patients. Otherwise, you can't collect the history accurately.
from the patients. Your cooperation, patient cooperation is a very necessary for you. Okay. ओके तो जब भी हम कोई भी असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी पेशेंट्स की जो है कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, थेराप्यूटिक रिलेशन होना चाहिए, ना कि हमें पर्सनल हेल्प करना है। क्वाइट इन्वायरमेंट होना चाहिए, ये नहीं है कि पंखा शोर कर रहा है, वहाँ आप एग्जामिन कर रहे हो, आप प्रॉपरली रेस्पिरेटरी जो है वो आस्कल्टेट कर रहे हो पेशेंट्स को, तो आप एग्जैक्टली एक्यूरेटली फाइंडिंग्स नहीं कलेक्ट कर सकते। ठीक है, पोजिशनिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए ताकि पेशेंट जो है वो आपका जो है वो कंफर्टेबल हो, आप प्रॉपरली उसको जो है वो एग्जामिन कर सकें। ठीक है, पेशेंट की स्किन को उतना ही एक्सपोज करें जितना आपको नेसेसरी है। पेशेंट कंफर्ट होगा आपके, क्योंकि ये नहीं कि वेदर के मुताबिक पे आप पेशेंट सर्दी में अटेंड कर रहे हैं पेशेंट्स को, आपके हाथ जो है वो बहुत जो है वो कोल्ड है, तो आपका पेशेंट्स का जो है वो कंफर्टेबल नहीं होगा। अगर स्टेथोस्कोप डायफ्राम भी सीजन के मुताबिक पे है तो उसको भी कोशिश करें आप थोड़े से वार्म हैंड करें और डायफ्राम को, स्टेथोस्कोप को थोड़ा सा वार्म करें ताकि पेशेंट्स, क्योंकि डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। आपने देखा कि एक तो अगर पेशेंट्स को कोई भी पॉइंट आउट करना है, पेनफुल टेंडरफुल एरिया है, तो हमने पेशेंट्स को पूछ लेना है एट द बिगिनिंग ऑफ द हिस्ट्री, ताकि पेशेंट जो है वो, हम उसकी जो है वो हिस्ट्री को जो है वो हमारी को ब्रेक ना करें। फाइंडिंग्स, और हमने अनअफेक्टेड एरिया, अगर पेशेंट बता रहा है कि राइट साइड पे उसको पेन है या लेफ्ट साइड पे, तो उस एरिया को आपने अवॉइड करना है। जो अनअफेक्टेड एरिया है आपने उसको जो है सबसे पहले जो है वो असेस करना है। ठीक है, उसकी फाइंडिंग्स लेनी है ताकि आप एक्यूरेट फाइंडिंग्स को ले सकें। और जब आप अफेक्टेड एरिया या टेंडरनेस और पेनफुल एरिया को पहले आप जो है वो हिट करोगे तो डेफिनेटली आपकी दोनों तरफ की फाइंडिंग जो है वो डिस्टर्ब होंगी और आप इजीली कलेक्ट नहीं कर सकोगे। ओके जी, already we know we are using the 4 techniques: insignia, inspection, palpation, percussion and auscultation. Is it clear? इंस्पेक्शन करेंगे हम स्किन के लिए, पैल्पेट करेंगे हम पेशेंट्स को, कोई उसके जो है वो लिम्फ नोड, सॉरी लिम्फ नोड लार्ज तो नहीं है, कोई मैच तो नहीं है। पार्कशन करेंगे हम उसकी रेस्पिरेटरी साउंड्स के लिए। ठीक है, और आस्कल्टेट करेंगे हम रेस्पिरेटरी साउंड के लिए, पार्कशन करेंगे कोई साउंड अब नॉर्मल प्रोड्यूस तो नहीं हो रही। ठीक है, क्लियर है याद? ओके जी, दिस इज अ इंस्पेक्शन। नाउ वी विल गो टू इंस्पेक्ट द चेस्ट। नॉर्मल चेस्ट, जिसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हमारा फोकस है और इसके अंदर क्या है, अदर ऑर्गन भी है। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू बेटा साहब। इसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमारा हार्ट भी पड़ा हुआ है, तो हमने इसीलिए बहुत केयरफुली, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको कहा कि पेशेंट से पूछना है कि उसको राइट साइड पे कहीं पेन है या लेफ्ट साइड पे है, तो वो पॉइंट आउट करेगा आपको, तो आप उस एरिया को जो है वो नहीं सबसे पहले टच करेंगे, एग्जामिन करेंगे। जो अनअफेक्टेड एरिया है उसको पहले एग्जामिन करेंगे फॉर द नॉर्मल फाइंडिंग कलेक्ट करने के लिए। तो इसी तरह हमने देखा कि हमें पता है हमारा एओर्टिक एरिया कहाँ है, पल्मोनिक एरिया कहाँ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने, जैसे हम लोग साउंड 1 S2 और S2 सुनेंगे, या हम कार्डियोलॉजी में पढ़ेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ थोड़ा सा आपको व्यू आपको नजर आ रहा है कि स्टर्नल लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, मिड क्लेविकुलर लाइन है और इंटीरियर हमारी एक्सरे लाइन है। अब माइटल एरियाज, ठीक है, माइटल एरिया आपको पता है, सबसे पहले तो हमें सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे हमारा क्या है, अगर आप सुनते हो, एओर्टिक एरिया है। ठीक है, और सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस अपोजिट साइड पे क्या है, हमारा पल्मोनिक एरिया है फॉर हार्ट असेसमेंट के लिए। अब फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर टू स्टर्नम, हमारा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, नियर टू स्टर्नम है, यहाँ हमारा ट्राइकस्पिड एरिया है। ठीक है, हमारे 4 पल्मोनिक हार्ट के वेल्व है ना, 4 है, एओर्टिक है, पल्मोनिक है और ट्राइकस्पिड है और माइट्रल वेल्व है। ऐसा ही है ना? आर यू अंडरस्टैंड? Are you getting my point, students? Okay, thank you शमैला जी बेटा। तो ये क्या है हमारे, हमें इन चीज़ों में भी देखना है, जब आप असेस कर रहे हो रेस्पिरेटरी सिस्टम को, तो ऑफ कोर्स आपने देखना है कि ये डुब डुब की आवाज़ है, साउंड 1 है या साउंड 2 है। ठीक है, माइट्रल एरिया जो है वो जस्ट मतलब उसकी पैरेलल में ही है। ओके, जस्ट पैरेलल में है, जो कि हम माइट्रल एरिया की बात करते हैं, वो बिलो द निपल, वहाँ हमारा माइट्रल एरिया सेचुरेटेड है, तो वहाँ भी हम सुन सकते हैं। जिस समटाइम हम उसको क्या करते हैं, एक हम असेस करते हैं उसको, हम उसको क्या PMI करते हैं। ठीक है, PMI क्या है?
पल्सेस, मैक्सिमम इम्पल्सेस आ जाती हैं, ठीक है। ओके, नॉर्मल चेस्ट, कम टू पॉइंट ऑन चेस्ट, ठीक है। तो नॉर्मल चेस्ट में क्या होगी, स्लाइट रिट्रैक्शंस होगी इंटरकोस्टल स्पेसिस के दरमियान में। समटाइम बहुत थिन पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, थिन पेशेंट्स होते हैं तो उनमें हमें साफ पता चल रहा होता है इंटरकोस्टल स्पेसिस के दरमियान में कोई रिट्रैक्शन हो रही है। मोस्टली बेबीज में अगर आपको देखने में ये चीज़ें मिल सकती हैं, मगर वो पेशेंट जो बहुत ही जिनकी स्टार्वेशन हुई होती है, मस्कुटेलियंस जो है मसल्स की वेस्टिंग हुई होती है, जिसकी वजह से जो है वो मसल जो है वो बिल्कुल पेशेंट्स के ऊपर नहीं होते, तो उनमें भी ये कंडीशंस नजर आती हैं, स्टारवेशन हुई होती है, ठीक है। मगर इनमें स्लाइटली रिट्रैक्शंस होती हैं इंटरकोस्टल स्पेसिस के दरमियान में। जब हम इसको एग्जामिन करते हैं तो आपको साफ पता चल रहा होता है कि उसमें 3 मसल्स हैं और रिब्स आपको फील होती हैं, ठीक है। टू मल्टीप्लाई एज ए वाइड एज ए डी, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर थोड़ा सा हमारा एक्सपेंशन में आ जाता है। जब हम सामने से करते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर 1:2 रेशो हम उसको एग्जामिन करते हैं। आई थिंक नाउ आवर टाइम इज जो है नियर टू फिनिश, ओनली रिमेनिंग 2 मिनट्स। तो आप सबके लिए जो है ये मेरा एक, अपने ग्रुप में मुझे ऐसे कि ग्रुप में आप क्लियर कर देना और सब ने रिव्यू करना है कि हाउ टू एग्जामिन इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स। यस, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्सिस, पीएमआई की बात हो रही थी, इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्सिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू बेटा कि ये हम कार्डियक असेसमेंट में जो है मस्कुलोस्केलेटल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में। जस्ट यहाँ विजुअलाइज थी, यहाँ इंस्पेक्शन में हमें जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी था मुझे, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ही हमारा क्या है, हार्ट सिचुएटेड है। ओके, और आप सब ने जो है वो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, हाउ टू मेजर द इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स, और आपने नीचे के ग्रुप में मुझे जो है वो आपने छोटे छोटे कमेंट्स में मुझे बताना है, ताकि आप सब ने रिव्यू करना है। Now I noted attendance 28 students are present online. तो इन सब के मुझे मैसेजेस मस्ट आपने एक सिंपल में कि आप लोगों ने रिव्यू किया, माशाल्लाह। नाउ आप 30 हो गए हैं, ठीक है। अब मेरा लेक्चर खत्म होने वाला है तो अब 30 स्टूडेंट्स यहाँ अपीयर हो रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, मगर आप लोगों ने कोशिश करना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने लेक्चर्स में जो है वो इन्वॉल्व हैं। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा, थैंक यू। आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ आया या नहीं? हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कल लेक्चर मेरा है, क्योंकि आप सबके पास स्केजुअल है, अपडेटेड स्केजुअल 1 आवर्स का। तो नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह बाकी रिमेनिंग हम यहाँ से ही स्टार्ट लेंगे, क्योंकि इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स आप लोगों ने मुझे एक्सप्लेन करना है, मुझे बताना है कि हाउ टू मेजर द इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स। ओके बेटा जी, सबके कंसेप्ट क्लियर हैं? कल को मुझे कोई ये ना कहे कि हमें लेक्चर की समझ नहीं आई, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा, मगर इन लेक्चर्स को आपने रिव्यू भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।